Hello students, so today we will start the problem solving of laser. Okay, so the question you can see from the board and we will solve it. So first what we have to do, we have to pass the journal entry, and after passing the journal entry we have to prepare the various laser accounts. Okay, so journalize the following transactions in the journal of MS Gupta and brother and post them to the laser. So 2019 March 1st started business with cash. How much the amount is your? Rupees 2 lakhs. Okay, so first what we have to do, we have to pass the journal entry. Okay, so March 1st, so what will be the journal entry? Journal entry would be cash account debited to capital account. Okay, and what is the amount? Amount is your rupees 2 lakhs. Okay, narration: being business started with cash. Being business started with cash. Okay, so this is the first transaction. Next is your March 2nd, open बैंक अकाउंट विथ SBI. हम लोग SBI से बैंक अकाउंट ओपन किए. एंट्री क्या बनेगा? SBI बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. ओके, दैट इज योर फॉर March 2nd. बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, एंट्री क्या बनेगा हम लोग का? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ओके, and how much is the amount? Amount is your 80,000. So 80,000. Okay, narration: being account opened. ठीक है. Next transaction is your March 4th. What is the transaction? Goods purchased from Raj, जयपुर, राजस्थान. कितना का गुड्स परचेज किए हैं? 22,000. ठीक है, तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. एंड सिंस द नेम हैज बीन गिवन, दैट मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो व्हाट विल बी द एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज. ओके, सो ट्रांजैक्शन इज March 4th. सो एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज. Okay, purchase account debited to Raj. And how much is the amount? Amount is your 22,000. 22,000 का गुड्स हम लोग क्या किए? परचेज किए हैं. ठीक है, March 4 ट्रांजेक्शन ओवर. नेक्स्ट इज योर March 8, गुड्स सोल्ड टू नमन, दिल्ली. कितना? 12,000. हम लोग नमन को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगा? नमन इज द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सो नमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, March 8. So March 8 would be Naman debited to sales account. ठीक है, March 8. And how much is the amount? Amount is 12,000. 12,000 is the amount. Narration: being goods sold. Okay, so this is how we are required to pass the entry. Next, March 10. March 10 में क्या हुआ? Cash paid to Raj. कितना कैश पे कर रहे हैं हम लोग? 22,000. So Raj is the personal account, debit the receiver, so Raj account would be debited and cash account would be credited. ठीक है, so that is March 10. So March 10 Raj को पैसा दे रहे हैं हम लोग, so Raj account debited to cash account. ठीक है, March 10. How much amount we are paying? 22,000. 22,000 को पे किए. Narration: being cash paid. ठीक है, March 10 हो गया. नेक्स्ट इज March 15. कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन. हाउ मच? 11,700. डिस्काउंट अलॉट कितना है? 300. ठीक है, तो कैश आ रहा है, एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड. ओके, अगेन डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू हुम? टू नमन. ठीक है, नमन इज द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो फॉर March 15, कैश आ रहा है हमारे पास में, सो कैश अकाउंट डेबिटेड. कितना कैश आ रहा है? 11,700. अगेन डिस्काउंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड. सो हाउ मच? डिस्काउंट अकाउंट कितना है? 300. कौन पैसा दे रहा है? नमन दे रहा है, सो टू नमन. हाउ मच वुड बी द अमाउंट? अमाउंट वुड बी 12,000. ओके, दिस ट्रांजेक्शन इज फॉर March 15. सो लास्ट ट्रांजेक्शन March 16. Paid wages 200. So wages is the nominal account. So debit all expenses and losses. Okay. So what will be the entry? March 16. So wages account debited to cash.
So wages account debited to cash account. Okay, how much is the amount? Amount is your 200. Narration being wages paid. Okay, so this is how we are required to pass the journal entry. Now after passing the journal entry, what we have to do? We have to post them into various ledger account. ठीक है, सबका लेजर अकाउंट बन जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग योर कैश अकाउंट. ओके, तो फॉर्मेट क्या है? डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कैश अकाउंट. दैट मीन्स जहां जहां कैश अकाउंट होगा, अगर कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड वी हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड. अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में. डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे टू करके लिख के, और क्रेडिट में लिखेंगे हम बाई करके. तो पहला ट्रांजेक्शन है मार्च 1. एंट्री क्या बता रहा है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. तो डेबिट, दिस इज द डेबिट साइड. ऑन डेबिट साइड व्हाट वी हैव टू राइट? टू कैपिटल अकाउंट. सो दैट इज योर टू कैपिटल अकाउंट. कितना आएगा अमाउंट हम लोग का? अमाउंट इज योर ₹2 lakhs. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन फॉर मार्च 1. ठीक है, नाउ मार्च 2. ट्रांजेक्शन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दैट मींस कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. सो वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, तो मार्च 2 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बाय बैंक अकाउंट. हाउ मच विल बी द अमाउंट? अमाउंट इज योर 80,000. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कैश नहीं है, नहीं आएगा, इधर भी नहीं है. नेक्स्ट है मार्च 10. क्या है एंट्री? राज अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दैट मीन्स कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, सो इट विल रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, मार्च 10. सो मार्च 10 क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? बाय राज. हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज योर 22,000. कैश में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा उसी का नाम लिखना है. नेक्स्ट मार्च 15. कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नमन. तो कैश डेबिट हो रहा है कितना? 11,700. ठीक है, सो दिस इज द डेबिट साइड. सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. दैट इज द मार्च 15 टू नमन. हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज 11,700. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर मार्च 16. एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दैट मीन्स कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे मार्च 16. सो मार्च 16 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाय कैश. हाउ मच? 200. ठीक है, सो नाउ एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू गेट द टोटल. टोटल कितना आएगा इसका? 2,11,700. ठीक है, और अकाउंट जब क्लोज करेंगे लास्ट डेट, मार्च का लास्ट डेट कितना आएगा? मार्च 31. यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ओके, सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंस फिगर and we have to write the difference in your what? In your cash account. Okay, so this is how we are required to prepare your cash account. Okay, so what will be the balancing figure? Balancing figure would be 1,09,500. ठीक है, again next account we are required to prepare your purchases account. ठीक है, हमको कौन सा अकाउंट बनाना है? परचेसेस अकाउंट बनाना है. तो हम देखेंगे ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड. मार्च 4 में ट्रांजैक्शन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू राज. ठीक है, डेबिट हो रहा है. सो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग मार्च 4. डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू राज लिख के कितना? 22,000. ठीक है, बिकॉज हियर परचेसेस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. ओके, नाउ एनी मोर परचेज अकाउंट. ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है. सो हम लोग का टोटल कितना आया? 22,000. नाउ वी हैव टू गेट द बैलेंस द लेजर अकाउंट. डेबिट साइड ज्यादा है. लास्ट डेट में क्या लिखेंगे? मार्च 31. ओके, व्हाट वी हैव टू राइट? बाय बैलेंस सीडी. सीडी का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन. कितना टोटल आया? 22,000. सो हियर आल्सो वी हैव टू राइट हाउ मच? 22,000. और डबल लाइन देके अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. ओके, दिस इज हाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अवर परचेसेस अकाउंट. नेक्स्ट इज योर सेल्स अकाउंट. ठीक है, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखो. मार्च 8 नमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. दैट मींस सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग मार्च 8. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाय नमन. हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज 12,000. ठीक है, इसके अलावा सेल्स अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है.
ठीक है। सो हियर वी हैव टू क्लोज द अकाउंट। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डेट लिखेंगे मार्च 31, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन एंड हाउ मच विल बी द अमाउंट, अमाउंट इज योर 12,000। okay, and we have to give the double line. Double line indicates the closing of ledger account. Okay, so similarly we are required to prepare your capital account, again bank account, again Raj account, again Naman account, and discount allowed account and wages account. More we are required to prepare. So now next account what we are likely to prepare, your capital account. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम देखेंगे ट्रांजैक्शन मार्च 1 में क्या एंट्री दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, दैट मींस कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय कैश, लिख के हाउ मच, अमाउंट इज योर 2 lakhs। ओके, नाउ क्या करना पड़ेगा अब हमको, नाउ वी हैव टू बैलेंस द अमाउंट। सो बैलेंस के टाइम क्या लिखेंगे, मार्च 1 में टू बैलेंस कैरी डाउन एंड हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर रुपीज 2 lakhs। ठीक है, फॉलोड बाय द डबल लाइन। नेक्स्ट एंट्री इज योर बैंक अकाउंट, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन विच हैज बीन रिलेटेड विद द बैंक अकाउंट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, मार्च 2 में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। सो मार्च 2 टू कैश अकाउंट। ओके, एंड हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 80,000। ठीक है, इससे रिलेटेड और बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन तो नहीं है। ओके, सो नाउ वी आर लाइकली टू क्लोज द अकाउंट। 80,000 आ गया यहाँ पे, क्लोज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लास्ट डेट इज योर मार्च 31, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 80,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर राज अकाउंट। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद राज विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो मार्च 4 में देखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज, दैट मीन्स राज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितना, 22,000। ठीक है, तो मार्च 4 में वी हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड। सो मार्च 4 व्हाट वी हैव टू राइट, बाय परचेजेस अकाउंट, कितना है, 22,000। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च 10 एंट्री क्या बना है, राज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट मींस राज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू कैश, हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 22,000। ठीक है, सो मार्च 10 टू कैश अकाउंट एंड हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 22,000। ठीक है, और ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें, देखो देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर, दैट मींस इन दिस केस राज अकाउंट ऑटोमेटिकली द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। जिसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो वहां पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर नमन अकाउंट। तो नमन का ट्रांजेक्शंस क्या है, मार्च 8 में नमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नमन अकाउंट का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, मार्च 8। सो मार्च 8 क्या लिखेंगे हम, नमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 12,000। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट मार्च 15 एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नमन, दैट मींस नमन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हमको लिखना पड़ेगा मार्च 15। सो मार्च 15। ठीक है, तो मेरा ट्रांजेक्शन क्या है, मेरा बाय, तुम्हारा कैश क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नमन। ओके, सो नमन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो क्या लिखेंगे हम, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट लिख के कितना अमाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 11,700। अगेन डिस्काउंट अकाउंट हैज आल्सो बीन डेबिटेड, सो सेम डेट मार्च 5 क्या लिखेंगे हम, बाय डिस्काउंट। ओके, हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज योर 300। टोटल कितना आ गया, टोटल इज योर 12,000। Here also total is how much, total is your 12,000. That means automatically Naman account has been closed. So now next which account we are required to prepare, we are required to prepare the discount account. ठीक है, तो format already there, date particular JF debit amount, date particular JF and credit amount. यहाँ पे दिख रहा है मार्च 15 में एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नमन, दैट मीन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू नमन लिख के अमाउंट किसका डालेंगे, डिस्काउंट का, हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज ऑल 300। ठीक है, दैट इज मार्च 15। सो मार्च 15 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू नमन
लिख के कितना 300, ठीक है। इसके अलावा और कोई डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है, सो नाउ वी आर लाइकली टू क्लोज द अकाउंट। अकाउंट को क्लोज करेंगे 300। लास्ट डेट, मार्च का लास्ट डेट कौन सा आता है 31st। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच इज द अमाउंट 300 एंड वी विल क्लोज द अकाउंट। ओके, दिस इज द डिस्काउंट अकाउंट। Now last account, which account we are likely to prepare, wages account. So what is the entry, wages account debited to cash, ठीक है। तो मार्च 16, तो मार्च 16 में हम wages account डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। ओके, how much is the amount, amount is 200. Now again we are likely to close the account, so what we have to write, March 31st, क्या लिखेंगे, by balance carried down, how much is the amount 200, and here we have closed the account. Okay, so this is how we are required to prepare. First of all, we have to pass the journal entry, and from the journal entry we have to prepare the various ledger account, ठीक है। लेजर अकाउंट बनाने के बाद हमको क्लोज भी करना है, और जब कभी भी हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, दैट मीन्स अकाउंट विल बी क्लोज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द पर्टिकुलर मंथ। Okay, that's all for today. Thank you.